Hi everybody, this is Savitri of GMA classes. I am teaching class 10 mathematics, chapter 6 triangles. In my previous video, I had introduced the chapter to you all. Hope you all must have gone through it. Today, I'll do exercise 6.1 and the proof of basic proportionality theorem. Yesterday I told you in my previous video I told you what are similar figures, what are the corresponding angles, corresponding sides, and for two figures to be similar, corresponding angles should be equal and the corresponding sides should be proportional. And same way for two triangles or to be similar, then also the angles should be equal, corresponding angles should be equal, and also the corresponding sides of the two triangles have to be proportional. All these things I have already told you in my previous video. Today I am going to explain to you exercise 6.1. It's a very small exercise. It's just fill in the blanks. First question is fill in the blanks using the correct word given in brackets. All circles are dash. In the bracket it's given congruent, similar. There the answer will be similar क्योंकि कल मैंने कहा था for two circles to be similar, the radii has to be compared, isn't it? If two circles have to be congruent, the radii have to be equal. But in the case of similar figures, the size can be different or the radii can be different. One circle can be a smaller one circle can be a bigger one also, and two circles can be of the same size also. So in this case, you cannot say congruent because इसमें radius के बारे में कुछ नहीं बताया and all circles बताया. All circles congruent होने के लिए all circles should have the same size and shape. Of course, circles में shape तो same ही है, लेकिन size has to be same. Congruent होने के लिए. तो इसमें nothing is mentioned about the size. All circles बताया, इसलिए उसका आंसर होगा similar. अब second और question 1 का first part and second part. All squares are dash. इसमें भी similar और congruent बताया है. इसमें भी आंसर आएगा similar क्योंकि all squares cannot be congruent. अगर सेम साइड लेंथ वाले स्क्वायर्स हो तो कॉन्ग्रुएंट होगा, नहीं तो सिमिलर ही है. नंबर 3, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर. सॉरी, इसमें दिया है आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल. इन दोनों में से कौन सा है? इसमें आंसर आएगा इक्विलैटरल. ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर. नंबर 4, two polygons of the same number of sides are similar. उसमें कंडीशन है two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and इसमें दो है, A में आएगा equal, B में आएगा the corresponding sides are proportional. ये सिर्फ डेफिनेशन है, सिमिलर फिगर्स के डेफिनेशन में आता है. टू फिगर्स
have two polygons or two figures will be similar if their corresponding angles are equal and the corresponding sides are proportional. Simple exercise है ये. Now question 2. Question 2 भी बहुत simple है. Give two examples of a pair of 1 similar figures. Similar figures के examples कौन सा हो सकता है? 2 squares हो सकता है और 2 pentagons हो सकता है. Anything. And second part है non-similar figures. Non-similar figures. Example में क्या है? A circle and a triangle. Circle and a triangle cannot be similar. Or a square and a hexagon cannot be similar. There are so many examples. So कोई भी दो लिख सकते हैं. Now this question number 3 है. Question number 3 में state whether the following quadrilaterals are similar or not. उन्होंने ये दिया है, दो फिगर्स दिया हुआ है. This is one figure they have given, P, Q, R, S. इसमें सारे साइड्स है 1.5 सेंटीमीटर्स, 1.5 सेंटीमीटर्स, 1.5 सेंटीमीटर्स, 1.5 सेंटीमीटर्स. एक और दिया हुआ है एक स्क्वायर दिया हुआ है A, B, C, D. All these angles are 90 degrees. ये तो दिया हुआ है. And also the sides are 3 centimeters, 3 centimeters, 3 centimeters, 3 centimeters. Are these figures similar? Answer will be no. क्यों? क्योंकि if they have to be similar, corresponding angle should be equal. अब इसमें clearly दिख रहा है एंगल P और एंगल A की इक्वल है ही नहीं. एंगल Q एंगल B की इक्वल नहीं है. ये सब 90 डिग्री से, इसमें कोई भी 90 डिग्री नहीं. करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. ये है 1.5/3 विल बी 1/2. 1.5/3 विल बी 1/2. तो करस्पॉन्डिंग साइड्स तो प्रोपोर्शनल हो रहा है, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं हो रहा है. सो दीज टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर. इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है. ओके, सो दिस वॉज अ वेरी वेरी सिंपल exercise. Just fill in the blanks. Now let's come to similarity of triangles. Similarity, क्योंकि इस चैप्टर में हमको मेनली पढ़ना है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स ओनली. बाकी स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स वगैरह इसलिए बताया कि सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना. सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट तो अभी क्लियर हो गया. क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए वो भी क्लियर हो गया. क्या कंडीशन है? लेट मी रिपीट. कोई भी दो फिगर्स सिमिलर होने के लिए द करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैव टू बी इक्वल एंड ऑल्सो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैव टू बी प्रोपोर्शनल और ऑफ द सेम रेशियो. अब हमको कॉन्सेंट्रेट करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में. अब सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए भी कंडीशन तो सेम है. टू ट्रायंगल्स will be similar. Two triangles will be similar if क्या है? There are two criterion, same criterion, corresponding angles are equal and second कंडीशन है करस्पॉन्डिंग साइड्स आर
corresponding sides are proportional. Proportional यानी सेम रेशियो, सेम रेशियो. सो बाकी सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर, सिमिलर फिगर्स की साइड, जैसे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में भी ये दो क्राइटेरियन सेटिस्फाई होना कंपलसरी है. देन ओनली द ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर. ओके, अब हम इस चैप्टर में पूरा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे. उसमें अलग अलग क्राइटेरियन आता है, दैट विल डिस्कस एज एंड व्हेन इट कम्स. अब हमको करना है द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियरम, थियरम 1. मैंने कहा है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, विच इज ऑल्सो नोन एज BPT, which is known in the short form as BPT, or it's also known as Thales theorem. Thales theorem, क्योंकि इसको ग्रीक मैथमेटिशियंस थेल्स ने डिराइव किया है ना. अब सबसे पहले इसको डेफिनेशन देख लेंगे. इफ अ लाइन इज ड्रॉन, ध्यान से सुनना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, प्रूफ भी करना पड़ेगा. स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम विल बी द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू विल गेट. ओके, तो उसमें स्टेटमेंट पहले लिखना. इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड of a triangle cuts the other two sides, or intersects or cuts the other two sides at distinct points or different points. Distinct points. The other two sides are, the other sides are divided in the same ratio. The other two sides are divided in the same ratio. I'll read the statement once again. If a line is drawn parallel to one side of a triangle, cuts the other two sides at distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. This is the statement of basic proportionality theorem. Now I'll explain to you how we can prove this. See here. This is a triangle ABC. अब इसमें क्या बताया, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड. सो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूं पैरेलल टू BC. सो ये सिंबल शो करता है दीज टू आर पैरेलल. ओके, अब इसका नाम देते हैं DE. अब मैंने क्या किया है, लाइन DE इज ड्रॉन पैरेलल टू BC. तो इसमें सबसे पहले हमको गिवन लिखना पड़ेगा. गिवन अ ट्रायंगल ABC एंड लाइन DE इज पैरेलल टू BC. अब थियरम क्या कहते हैं, ये अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट करते हैं तो इनका जो ये दो साइड्स है, दे विल डिवाइड प्रोपोर्शनली. द साइड्स विल बी proportional, यानी AD upon DB will be equal to AE upon EC. This is what you have to prove. थियरम यही कहता है कि अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो इनके जो बाकी दो साइड्स हैं, the sides will be cut proportionally or they will be cut in the same ratio. So हमको प्रूव क्या करना है, AD upon DB is equal to AE upon EC. ये हमको प्रूव करना है.
दिस इज व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. तो दिस इज द मेन प्रूफ दैट यू हैव टू मेक. अब इसमें हमको एक कंस्ट्रक्शन करना है. इसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए लेट्स सी व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन दैट वी हैव टू डू टू प्रूव दिस. कंस्ट्रक्शन में क्या है? जॉइन BE. मैं रेड पेन से ड्रॉ कर ज्वाइन करती हूं. जॉइन BE and CD. Join BE and CD. Is this clear, children? Let me make it clear once again. अब मैंने क्या किया है? BE को ज्वाइन किया, CD को भी ज्वाइन किया. एंड एक और कंस्ट्रक्शन है इसमें. तो इसमें क्या है? पहला कंस्ट्रक्शन है ज्वाइन BE एंड CD. ये तो हो गया. एक और कंस्ट्रक्शन हमको क्या करना है? ड्रॉ. अब इसमें ड्रॉ करेंगे DM, इसको M. ये परपेंडिकुलर टू AC. DM परपेंडिकुलर टू AC. सो ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड एक और ड्रॉ करना है EN. E में से AB का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. E में से AB का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. दैट इज EN एंड ड्रॉ EN परपेंडिकुलर टू AB. इसमें हमने दो कंस्ट्रक्शन किया अभी. एक तो BE और CD को ज्वाइन किया और DM परपेंडिकुलर बनाया AC के लिए, EN परपेंडिकुलर बनाया AB के लिए. ये 90 डिग्री से. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस फिगर, अंडरस्टूड द कंस्ट्रक्शन. हमको प्रूव ये करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. अब हम जाते हैं प्रूफ के लिए, शुरू करते हैं. प्रूफ कैसे करते हैं इसमें? अब देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE, एरिया ट्रायंगल ADE. इसको ऐसा मेंशन करते हैं एरिया. AR शॉर्ट फॉर्म है एरिया का. एरिया ट्रायंगल ADE हमको पता है हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू ADE का बेस AD इंटू ऑल्टीट्यूड क्या है? AD, यानी AB का ऑल्टीट्यूड ही है, AD का भी ऑल्टीट्यूड. सो AB की परपेंडिकुलर हमने EN ड्रॉ कर लिया था. तो EN, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ AD इंटू EN. ओके, अब एरिया BDE, area of triangle BDE is equal to half base क्या है? BD, half EB into altitude is the same क्योंकि AB के altitude EN है ना. So altitude is the same. So हमको मिला एरिया ऑफ ADE ले लिया हमने हाफ AD इंटू EN. एरिया ऑफ BDE
डी ई, ये ट्रायंगल है हाफ डी बी इंटू ई एन. नाउ देयरफॉर हम इसका रेशियो लेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ triangle BDE. This area upon this area will give you what? Half into AD into EN upon half into DB into EN. Now you can see half and half got cancelled. EN and EN got cancelled. Finally हमको मिला AD upon DB. Okay. That is area of triangle ADE upon area of triangle BDE is equal to AD upon DB. इसको equation 1 मान लिया. Now, in the same way, हमको लेना है, okay, now, area of ट्रायंगल ADE वापस ले लेंगे. ADE, अब देखो ADE एक बार ले लिया तो हमने AD को बेस मान के EN को परपेंडिकुलर ले लिया. अब ADE में कोई भी एक साइड बेस मान सकते हैं. सो इस बार AE को बेस मानते हैं. AE को बेस मानेंगे तो परपेंडिकुलर होगा DM. सो इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन, अब इसमें पहले लिया था BDE लिया था, इस बार लिखेंगे DCE. ओके, और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC. ओके, DEC. सो इसमें इस रेशियो में ऊपर का ट्रायंगल तो सेम है. नीचे पहले लिया था BDE, इस बार ले रहे हैं DEC. दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू DEC. DEC उसका बेस क्या होगा? EC. EC इंटू परपेंडिकुलर क्या है? सेम है, DM. सो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC क्या है? हाफ हाफ कट गया, DM कट गया, तो हमको मिला AE अपॉन EC. ये हो गया इक्वेशन हमारा 2. अब देखिए ध्यान से, ADE लिया, BDE लिया, उसका रेशियो लिया. नाउ सेम ADE ले रहा है, DEC ले रहा है, उसका भी रेशियो लिया, AE अपॉन EC मिला. अब ADE में कंफ्यूज मत होना. ट्रायंगल ADE का बेस AD भी ले सकता है, AE भी ले सकते हैं, DE भी ले सकते हैं. लेकिन मैंने पहले केस में AD ले लिया तो करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हो गया EN. सेकेंड केस में मैंने AE को बेस ले लिया, AE को बेस ले लिया तो उसको करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर है DM. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. अब देखो हमको ये 2 रेशियो मिल गया है. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE यानी ये वाला ट्रायंगल BDE will be equal to area of triangle DEC. यानी मैं शेड करके बताती हूँ. BDE ये वाला ट्रायंगल और DEC ये 2 ट्रायंगल का एरिया सेम है. यानी ये BDE और DEC का एरिया सेम है. क्यों?
क्योंकि बिकॉज दे आर ऑन द, ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं earlier, ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स. देखो, द थियरम इज ट्रायंगल्स on the same base and between the same parallel lines have equal area. So BDE and DEC same base DE पर है और दोनों ही BC और DE parallel lines के बीच में है. So let me repeat the property. Triangles on the same base and between the same parallel lines are equal in area. That is why area of triangle BDE is equal to area of triangle DEC, because they are on the same base and between the same parallel lines. समझ में आ गया? अब इसको, अब ऊपर ADE और ADE है, वो तो इक्वल है ही. So when we compare this, therefore ये सेम है, डिनोमिनेटर्स भी सेम है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो सेम. therefore AD upon DB is equal to AE upon EC. ओके, ये हमको प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड. सो इसमें हमने क्या किया, पहले ट्रायंगल ADE और AED दोनों इधर ले लिया है, दोनों में बेस अलग लिया, सो अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा. और BDE और DEC का एरिया ले लिया, लेकिन वो एरिया सेम है बिकॉज बोथ ऑफ देम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस. इसलिए ये दो ट्रायंगल्स की एरिया भी इक्वल हो गया. सो व्हेन यू कंपेयर दैट ADE और ADE, BDE इक्वल टू DEC, तो न्यूमरेटर्स भी सेम है, डिनोमिनेटर्स भी इक्वल है. देयरफॉर हम इसको AD अपॉन DB और AE अपॉन EC भी इक्वल होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड्स दोनों के इक्वल है, तो राइट साइड्स भी इक्वल होगा. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियरम और उसका प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सिंपल है, दोनों का एरिया निकालना, रेशियो निकालना, सो ऑटोमेटिकली वी आर रीचिंग हियर. इक्वल पार्ट्स को कैंसिल करेंगे तब. डिड यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियरम. अब इसमें हमको एक कोरोलरी आता है. कोरोलरी, कोरोलरी इसमें क्या है, हमने अभी क्या किया है, हमको मिला AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ये तो हमको मिल गया. नाउ एड 1 टू बोथ साइड्स. वैसे इसका प्रूफ तुम लोग, ये वाला प्रूफ नहीं आएगा, फिर भी समझा रही हूं मैं. अब AD अपॉन DB प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1. अब इधर दोनों साइड हम LCM लेंगे तो क्या होगा, दिस विल इम्प्लाई DB इज द LCM. सो AD प्लस ये DB से करेंगे तो DB इज इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन EC. दिस विल इम्प्लाई, अब हमारा फिगर देखो, AD प्लस DB. AD प्लस DB क्या होता है, in the place of AD plus DB you can write AB.
upon dB is equal to AE plus EC की जगह पर you can write AC. So AC upon EC. This is also a part of basic proportionality theorem. It's a corollary. यानी हमने ये प्रूव किया था AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. अब हम ये भी कर सकते हैं AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC फुल लेंथ भी ले सकते हैं और DB अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AC ऐसे भी ले सकते हैं. उसका ये प्रूफ बताया, दैट इज कॉल्ड ए कोरोलरी, यानी इट्स अ सब पार्ट ऑफ दिस प्रूफ. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? सो दिस ऑल्सो यू मे हैव टू यूज वाइल डूइंग द एक्सरसाइज. ऑफ कोर्स ये प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल मैंने बताया था कि ये कैसा हो रहा है ना. सो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ समझा दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? That's all for in this video, children. Thank you so much. Bye. Please don't forget to share, like and subscribe. Thank you.